Shall we start? Mute लगाओ सबको करो. Shall we start, man? हाँ कर दीजिए पंकज. Okay. Good afternoon, everyone. A very pleasant and warm good afternoon to everyone. I, Pankaj Chaudhary, FDP Cell Coordinator, welcome special guest of this webinar, Shri Amit Sharma ji, CGM cum Secretary, DLSA Panipat. Shri Arvind Khurania ji, Advocate, District Court, Kaithal. Convener of this webinar, Dr. Anuradha Singh ji, and Coordinator, Legal Literacy Cell. And Coordinator, Women Development Center, Minat Talas ji. IQC Coordinator, Satvir Singh ji. And all the participants who joined us. We welcome you all on this National Legal Awareness Webinar on Special Laws for Children, Women, Parents, and Senior Citizens. We welcome you, sir. We welcome Amit Sharma ji. We welcome Arvind Khurania ji. I hand over the mic to Dr. Anuradha Singh ji for the further proceedings. Over to you, ma'am. Thank you, Pankaj. A very warm welcome to all. Today we have with us Shri Arvind Khurania ji, a renowned advocate with great depth of experience and knowledge. He has been practicing as an advocate at Kaithal for the last 32 years. He is a master trainer of Haryana State Legal Services Authority and visiting faculty of Haryana Police Academy, Madhuban, and Punjab Police Academy, Philor, as well as HIPA, Gurgaon. I welcome you, sir, in this webinar. I also welcome Shri Amit Sharma ji, CGM, cum Secretary, DLSA Panipat. Thank you, sir, for all your cooperation. He made many efforts to help us organize this seminar. Despite his busy schedule, he has taken time to stay with us today. Thank you again, sir. I also welcome all teachers and students in this webinar. The aim of the webinar is to educate and empower students through spreading awareness about the legal rights of children, women, and senior citizens so that they can render legal assistance to them when they need it. In India, as per the Legal Service Authorities Act 1987, the National Legal Services Authority has been designated to take appropriate measures for spreading legal literacy and legal awareness amongst the people. Legal awareness, also known as legal consciousness, is the empowerment of individuals regarding their rights. About 70% of the people living in rural areas are illiterate, and even more than that percentage of the people are not aware of the rights conferred upon them by law. It has been discovered that even literate people on occasions lack awareness.
Lacking legal awareness is one of the main hurdles in growth of a society today. Successful education of children, women, and senior citizens as regards their rights gives rise to an awakened society where truth and illiteracy prevail over illiteracy and old dogmas. Legal awareness buys knowledge and progressive mindset. Awareness of legal rights and duties leads to a truly civilized society where each one is committed to optimally working in harmony for progress of the nation. Addressing a valedictory function of 17th All India Meet of State Legal Services Authorities in Nagpur, the then Chief Justice of India, Rajan Gogoi, said that the absence of legal awareness was the root cause of deception, exploitation, and deprivation of the rights and benefits of the masses. Today, Arvind Khurania sir will talk on special laws for children, women, parents, and senior citizens. It will be really beneficial for us to hear from him. It's a pleasure, sir, to have you here with us today. We'll be enriched by your lecture today, sir. Thank you. Over to you, Pankaj. Pankaj, sir. Vikas. जी मैम मुझे हाँ जी मैम, Pankaj, sir. हाँ जी Over to you. You may continue now. Okay. Thank you, ma'am. Thank you for your kind words. Now I would like to invite resource person of the day, Shri Arvind Khurania ji. Over to you, sir. Sir, your voice is on, your mic is on mute, sir. Unmute yourself. Okay. Arya Postgraduate College, Panipat, in association with District Legal Services Authority, Panipat, is organizing this national webinar for legal awareness on special laws relating to children, women, parents, and senior citizens. I am thankful to Shri Amit Sharma ji, Chief Judicial Magistrate cum Secretary, District Legal Services Authority, Panipat, and the coordinator of this program for inviting me as a resource person for addressing you on these issues. हम 3 या 4 फोल्ड्स में इसमें बात करेंगे अलग अलग. पहले बच्चों की, चिल्ड्रन से रिलेटेड लॉज की, वुमेन से रिलेटेड लॉज की, पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स के लॉज की, और एक स्पेशल एक्ट जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, उसकी हम बात करेंगे आज के वेबिनार में. और हर सब्जेक्ट के बाद मैं एक ओपन हाउस भी इसमें 5 मिनट का चाहूंगा कि आपकी कोई क्वेरी होगी तो उसको आंसर करेंगे साथ में. सबसे पहले मैं ले रहा हूं चिल्ड्रन लॉज, which are the special laws created by the Parliament of India. One of the special law, Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. मैं बताना चाहूंगा कि अगर इसका टाइटल देखें आप, जुवेनाइल जस्टिस, उसके बाद ब्रैकेट में दिया है केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट. तो ये लॉ सीधा सीधा इस कानून को 2 हिस्सों में बांटता है. पहले हिस्से में जुवेनाइल जस्टिस, उन बच्चों की बात की गई है जो बच्चे किसी ना किसी अपराध में, क्राइम में संलिप्त हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं. उनसे कैसे डील करेगी कोर्ट और प्रोसेस और पुलिस इन्वेस्टिगेशन. और दूसरा हिस्सा है केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का देख रेख और संरक्षण, उसकी बात की गई है. पहली बात तो यह है कि बच्चा कौन है, जिसकी एज जो है 18 साल से कम है, हु इज लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये कानून लाया क्यों गया हमारे देश में, इसकी बात करेंगे.
देखिए, बच्चों से रिलेटेड लॉज में सभी तरह की बातें इंडियन पिनल कोड में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, एविडेंस एक्ट में पहले से की गई थी, लेकिन इंडिया इज ए मेंबर कंट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड ड्यू टू विच all the treaties signed by our government at the global level in the United Nations are being implemented in our country. हमारे देश ने हेग कन्वेंशन में, बीजिंग कन्वेंशन में जो ट्रीटीज साइन की, उसके मद्देनजर ये कानून हमारे देश में भी बनाया गया और लागू किया गया। पहले ये सन 2000 में बनाया गया, इसको मॉडिफाई किया गया, अमेंडेड एक्ट लेकर आए 2015 में, और अब इसको पूरी तरह से लागू कर दिया पूरे देश में। पहले जम्मू कश्मीर में ये एप्लीकेबल नहीं था, और 2019 से जो है ये जम्मू कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट हो गया है आफ्टर अमेंडमेंट। इस कानून के तहत बच्चों से रिलेटेड जो अपराध के मामले हैं उसको देखते हुए बोर्ड्स बनाए गए, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स। वी हैव क्रिएटेड द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ऑल ओवर इंडिया एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। जो भी पुलिस है उसमें हर एक थाने में, पुलिस स्टेशन में, वी हैव क्रिएटेड स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट वो पुलिस जो बच्चों के अपराध का संज्ञान लेगी, कॉग्निजेंस लेगी, और बच्चों की इन्वेस्टिगेशन कर उसको प्रोसेस करेगी और उसको बोर्ड के सामने प्रोड्यूस करेगी बच्चे को विद इन 24 आवर्स। मैं प्रोसीजर भी थोड़ा थोड़ा इसमें बताऊंगा आपको। अब कोई बच्चा अपराध में संलिप्त है, उसकी सूचना किसी ना किसी तरीके से चाइल्ड लाइन से या एनजीओ के द्वारा या कॉमन पर्सन के द्वारा या किसी के भी द्वारा पुलिस तक पहुंचती है, और पुलिस के द्वारा उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में। हर एक थाने में, हर एक पुलिस स्टेशन में 3 लोगों को स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट का दर्जा दिया गया है, जिसमें एक ऑफिसर जो है एएसआई लेवल का होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एक हवलदार, और प्रेफरेबली एक महिला कांस्टेबल को भी इसमें रखा जाता है। और जब ऐसा कोई बच्चा आता है, अपराध में संलिप्त होता है, तो इस पुलिस को एक विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहला कार्य इसका होता है कि अगर उस बच्चे को मेडिकल एड की जरूरत है या ट्रीटमेंट की जरूरत है, सबसे पहला काम है उसको वो प्रोवाइड करना। फिर दूसरा काम होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को उस बच्चे के अपराध की इंफॉर्मेशन देना। ये इंफॉर्मेशन देना कि पुलिस में ऐसे बच्चे को लाया गया है या उसके बारे में रिपोर्ट आई है, ताकि उसको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अपनी तरफ से लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करे, एक वकील की सुविधा उसको दे, ताकि पुलिस उसके साथ किसी भी प्रकार की ज्यादती ना कर सके। साथ ही साथ स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट जो है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को सूचना देती है, ताकि वहां से भी काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट वगैरह की सुविधाएं ली जा सकती हैं। एक बात और है कि हो सकता है बच्चा दूसरे राज्य का हो, महाराष्ट्र को, केरला का हो, गुजरात का हो, वो हिंदी नहीं समझ रहा या इंग्लिश नहीं समझ रहा, तो पुलिस कैसे काम करेगी, उसकी लैंग्वेज को कैसे समझेगी, उसको कैसे बताएगी कि तुम्हारे खिलाफ क्या बात, क्या सूचना हमारे पास आई है। तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट भी एक क्रिएट की गई है इसी एक्ट के तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, ट्रांसलेटर वगैरह वगैरह होते हैं, और वहां से जो है दुभाषिया ट्रांसलेटर आता है और वो बच्चे से बात करके और वो पुलिस वालों को उसकी पूरी जानकारी देता है, बीच में मीडिएटर का काम करता है। साथ में ही अगर बच्चे को केयर एंड प्रोटेक्शन की भी अगर जरूरत है, बच्चा अपराधी है, अपराध में लाया गया है, उसको अगर केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो पुलिस जो है उसकी सूचना चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी देती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है बच्चों के देख रेख और संरक्षण का कार्य करती है। तो ये एक टीम वर्क होके उस बच्चे को 24 घंटे के अंदर ये सारी बातें करके और उसकी सूचना उसके पेरेंट्स को देकर फिर उसको बोर्ड के अंदर लाया जाता है। अगर बोर्ड उस दिन सिटिंग है, बोर्ड में एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होता है, 2 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक मेंबर प्रेफरेबली वुमेन होती है। 3 बंदों की ये एक तरह की खंडपीठ बनाई गई है। इसमें बोर्ड को पेश करते हैं बच्चे को। लेकिन अगर उस दिन सिटिंग नहीं है तो पुलिस की ये ड्यूटी है, जो ड्यूटी रोस्टर में मेंबर है उसके पास इस बच्चे को पेश करेंगे। उस मेंबर का या बोर्ड का काम ये होता है कि पहले बच्चे से इंटरेक्ट करेंगे,
पुलिस ने स्पेशल लॉ में हर तरह की पालना की है या नहीं, उन कागजों को देखेंगे, बच्चे की एज को देखेंगे, उसको किसी मेडिकल एड की जरूरत है उस चीज को देखेंगे। फिर ये देखना होगा कि क्या इस बच्चे को अपराध की समीक्षा करते हुए 3 तरह के अपराध होते हैं: पेटी ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस, हीनियस ऑफेंसेस। छोटे अपराध, गंभीर अपराध, जघन्य अपराध। जिन अपराधों में 3 साल से कम की सजा है उसके लिए समय सीमा भी रखी गई है बच्चे के अपराध की समीक्षा करने की। 4 से 6 महीने तक बोर्ड को उसकी समीक्षा करनी होती है और उसका फैसला करना होता है। और ये देखना होगा बोर्ड को कि क्या उसके पेरेंट्स आए हैं, उसके गार्जियन आए हैं। अगर वो आए हैं तो वो बच्चे को बेल कर उसको हैंड ओवर कर देंगे, और अगर नहीं है तो फिर उसको ऑब्जर्वेशन होम में भेजा जाएगा। बच्चों के लिए अलग से ऑब्जर्वेशन होम बनाए गए हैं, उनको सामान्य जेल में नहीं भेजा जा सकता, ऐसा इस विशेष कानून में प्रावधान किया गया है। साथ साथ पुलिस से बोर्ड जो है बच्चे की सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट मंगाता है, जिसमें उसकी फैमिली की डिटेल्स, उसकी एजुकेशन, उसके भाई बहनों की डिटेल, उनका एजुकेशन लेवल, क्या वो पहले किसी अपराध में संलिप्त रहा है, वो सारी डिटेल बोर्ड के पास आती है। सिमिलरली 15 दिन के बाद जो डेट लगेगी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के लीगल कंप्रोबेशन ऑफिसर उस बच्चे की एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उसके घर जाकर आसपास से जानकारी एकत्रित करके वो बोर्ड को देंगे। उसमें बोर्ड ये भी देखता है कि क्या बच्चे को एजुकेशन देने की जरूरत है, क्या उसको काउंसलिंग की जरूरत है, क्या उसके लिए साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, वगैरह वगैरह। तो बच्चे का 4 कॉर्नर ध्यान इस कानून के तहत, चाहे वो बच्चा अपराध में संलिप्त है, ऐसा किया जाता है। जो सीरियस ऑफेंस है या जो हीनियस ऑफेंस है, जिसमें बच्चे की उम्र 16 साल से अधिक है, उन केसेस की समीक्षा करते हुए प्रिलिमिनरी असेसमेंट करके बोर्ड उनको हायर कोर्ट में भेजता है, चिल्ड्रन कोर्ट में या स्पेशल कोर्ट में। ऐसा प्रावधान ये अब अमेंडेड एक्ट में 2015 में किया गया है। आपने सुना होगा एक निर्भया का केस हुआ था। निर्भया केस के बाद पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर पड़ा, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया और लॉ कमीशन ने अपनी फाइंडिंग दी और इस कानून को जो है अमेंड किया गया, और इसमें एक पॉकेट बनाई गई 16 से 18 साल के बच्चों के लिए। उन बच्चों को जिन्होंने हीनियस अपराध किए हैं उनको हम भेज देते हैं फिर चिल्ड्रन कोर्ट या स्पेशल कोर्ट में, ताकि उनको एज अडल्ट ट्रीट करके उनका वहां पर ट्रायल किया जा सके। जो बोर्ड में इंक्वायरी होती है वो इंक्वायरी है, वो ट्रायल नहीं है। और जो इसमें फैसला होता है वो बच्चे के हित को देख के किया जाता है। सेक्शन 3 में 16 तरह के प्रिंसिपल दिए गए हैं, जिसमें हम बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट की बात करते हैं, और उसके मद्देनजर ही 4 कॉर्नर उसका संज्ञान लिया जाता है, कॉग्निजेंस लिया जाता है, ऐसा प्रावधान है। ये भी ध्यान रखा जाता है कि उसका ये टोटल प्रोसीडिंग कैमरा प्रोसीडिंग हो, उसका जो भी वर्डिक्ट हो, जो पेपर वर्क हो, उसमें बच्चे का नाम ना आए, और जो भी फाइंडिंग बोर्ड या कोर्ट की होंगी वो बच्चे के इन फ्यूचर कहीं भी आड़े ना आए, उसका इफेक्ट बच्चे के फ्यूचर कैरियर पर ना पड़े, चाहे उसका गवर्नमेंट जॉब के लिए है या उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए है या उसकी फर्दर एजुकेशन के लिए है। तो ये फाइंडिंग्स उसके रास्ते में नहीं आती, ये स्पेशल लॉ में प्रोविजन किया गया है। ये सब चीजें हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की, जो बच्चे अपराध में संलिप्त होकर आते हैं। जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट या मेंबर बोर्ड हैं, उनकी ड्यूटी ये भी रहती है कि वो सामान्य जेलों को, ऑब्जर्वेशन होम को, स्पेशल होम को, फिट फैसिलिटी को, सीसीआई को, चिल्ड्रन होम को, इन सब को टाइम टू टाइम विजिट करें, कॉग्निजेंस लें, वहां पर बच्चों का 4 कॉर्नर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी रिपोर्ट बनाएं, और इस रिपोर्ट को वी हैव टू सेंड द डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट। इसके साथ ही जो कमियां जेल में या ऑब्जर्वेशन होम में और डिफरेंट होम्स में हमें देखने को मिलती हैं, उनके बारे में भी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को भेजी जा सकती हैं, ताकि उसका
निपटारा किया जाए, वो डेवलप किया जा सके, जो भी चीज वहाँ रिक्वायर्ड है बच्चों के हित में वो किया जाए। इस स्पेशल लॉ में एक तरह का प्रोविजन ये भी किया गया है कि बच्चे की डाइट का 3 टाइम्स मील्स का उसमें व्यवस्था की गई है कि उसको क्या क्या खाने को दिया जाना चाहिए उसकी एज के हिसाब से। इन बच्चों को जो कमरों में रखा जाता है एज के हिसाब से इनके अलग अलग रूम बनाए गए हैं। ये है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का सिस्टम। अब मैं इसके दूसरे फोल्ड पे आता हूँ, केयर एंड प्रोटेक्शन की जो बात करेंगे। देखिए ये बड़ा स्पेशल लॉ है, इसमें हर तरह की बात का ध्यान रखा गया है। 0 टाइम से जो बच्चा है, जो अभी पैदा हुआ है, जिसने अभी जन्म लिया है, उससे लेकर 18 साल तक की हमने बात की है इसमें। केयर एंड प्रोटेक्शन में बात करेंगे। केयर एंड प्रोटेक्शन में एक स्पेशल एजेंसी बनाई गई है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, पूरे इंडिया में है। इसमें एक चेयरपर्सन है और 4 मेंबर इसमें जो हैं सोशल वर्कर लिए गए हैं। इनका काम राउंड द क्लॉक काम क्या है, जैसे ही इनको किसी बच्चे की सूचना मिलती है, चाहे वो अबेंडेंड चाइल्ड है, चाहे वो सरेंडर्ड चाइल्ड है, चाहे वो बच्चा सड़क पे मिल गया, रेलवे स्टेशन पे मिल गया, बस स्टैंड पे मिल गया, जो जिसका कोई भी केयर एंड प्रोटेक्शन करने वाला नहीं है, जिसका कोई गार्जियन नहीं है, जिसके कोई पेरेंट्स नहीं है, उस बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास पेश किया जाता है। पुलिस लाइन भी लेके आती है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट भी लेके आती है। चाइल्ड लाइन के थ्रू जो सूचना आती है CWC उसका तुरंत संज्ञान लेती है। मैं आपको बता दूं कि जो 0 टाइम का बच्चा है, जो पैदा करके किसी ने फेंक दिया है, अबेंडेंड है, आप देखिए कि हमारे ऐसे बहुत से मामले आते हैं। इसके लिए बहुत से चिल्ड्रन होम बनाए गए हैं, स्पेशल अडॉप्शन एजेंसीज बनाई गई हैं इसी कानून के तहत। 0 टाइम के बच्चे को जैसे ही सूचना मिलती है, CWC तक वो सूचना पहुंचती है, तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, NGOs, ये सब लोग वहां इकट्ठे होते हैं, पहुंचते हैं, कॉग्निजेंस लेते हैं। उस बच्चे को रेस्क्यू किया जाता है इमीडिएटली, उसको रखा जाता है स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी में। लेकिन सबसे पहले उसका मेडिकल केयर, तुरंत उसको रश करते हैं हम हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जब वो डिस्चार्ज हो जाता है, CWC उसमें ऑर्डर पास करती है कि इस बच्चे को अब किस चिल्ड्रन होम में या किस एजेंसी में रखना है। वहां पर उसको ट्रांसमिट किया जाता है, उसको वहां रखा जाता है राउंड द क्लॉक। पूरा उसको घर की तरह का एनवायरनमेंट दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, आपके पानीपत में भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है। मैडम पुष्पा वहां पर हैं चेयरपर्सन, और स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी वहां पर नहीं है, हमारे कैथल में है जहां से मैं बिलोंग करता हूं। ये 10-12 डिस्ट्रिक्ट से बच्चे हमारे पास स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी में ट्रांसमिट होके आते हैं। अलग अलग CWCs उसको भेजती हैं। 0 टाइम का बच्चा, राउंड दी क्लॉक उनको नर्सिंग फैसिलिटी हम केयर करते हैं। 8 नर्सिस रखी जाती हैं या 6 रखी जाती हैं, राउंड दी क्लॉक 2 हर समय अवेलेबल रहेंगी। डे बाय डे मेडिकल डॉक्टर उसको, चाइल्ड स्पेशलिस्ट चेक करता है बच्चे को, कौन सा लैक्टोजन उसको देना है, वो मिल्क पाउडर उपलब्ध कराया जाता है, वगैरह वगैरह। मैं क्योंकि इसमें 20 साल से काम कर रहा हूँ चाइल्ड लाइन में और चाइल्ड केयर में, मैं आपको बता दूं कि हमने रात को 12 बजे भी बच्चा रेस्क्यू किया है जिसको एक जानवर खा रहा था, न्यूली बॉर्न चाइल्ड। उसका फेस खा गया, उसकी 4 उंगलियां पैर की खा गया, उसको रात को रेस्क्यू किया, उसको सिविल हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां से उसको रेफर किया गया, उसको हमने PGI पहुंचाया। 6 महीने उसकी प्लास्टिक सर्जरी में लगे और अब वो बच्ची बच गई। देखिए बिल्कुल 1 घंटे का बच्चा था जिस समय हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि वो कहीं गांव में उसको बच्चा कोई जानवर खा रहा है, रेस्क्यू किया था रात को। अब वो वहां से ठीक होके PGI से वापस हमारे अडॉप्शन सेंटर में आ गई है। बच्ची बिल्कुल ठीक है, उसकी केयर की जा रही है। इन बच्चों को साथ में ही अडॉप्शन की प्रक्रिया में डाला जाता है। इन बच्चे का फोटो जो है न्यूज़पेपर में आप देखते हैं कि ये बच्चा मिला है, इन हालात में मिला है, उसकी DDR दर्ज की जाती है पुलिस में, और फिर इन बच्चों को लीगली फ्री डिक्लेयर कर देती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बच्चे बन जाते हैं और फिर हम इनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अडॉप्शन की प्रक्रिया में डालते हैं, फॉर गिविंग देम इन अडॉप्शन, सो दैट कि उनको फैमिली एटमॉस्फेयर मिल सके। जिन पेरेंट्स को बच्चों की जरूरत है
उन बच्चों को लीगल अडॉप्शन में दिया जाता है। पूरा मैकेनिज्म है इसके लिए। चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी बनाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसके ऊपर वो पेरेंट्स रजिस्टर करते हैं अपने आप को, और इन बच्चों की पूरी डिटेल भी ये सब एजेंसियां उसके ऊपर रजिस्टर करती हैं। जब मैचिंग होती है उनको बुलाया जाता है, बच्चे का मेडिकल उनके सामने होता है, उन पेरेंट्स का मेडिकल भी करवाया जाता है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस को देखा जाता है, उन पेरेंट्स के होम स्टडी रिपोर्ट को करवाया जाता है कि उनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर सिंगल फीमेल है वो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है इस लॉ के तहत ही, तो वो दोनों जेंडर ले सकती है, मेल भी और फीमेल भी। लेकिन अगर कोई मेल सिंगल पर्सन बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसको सिर्फ मेल चाइल्ड ही अडॉप्शन में दिया जा सकता है। मैं अगर कैथल के अडॉप्शन सेंटर की बात करूं, अभी हमारे पास 6 बच्चे हैं, किसी समय 20 के करीब थे। अभी तक हम पिछले 2.5 साल में 36 बच्चों को जो है हमने अडॉप्शन में भेजा है, जिसमें से एक चाइल्ड जो है फीमेल चाइल्ड इंटरनेशनली गई है, बेल्जियम में गई है। शी वाज ए माइल्ड मेंटली रिटार्डेड। देयर इज कैटेगरी कि आपको किस तरह का बच्चा अडॉप्शन में लेना है, नॉर्मल लेना है, मेल लेना है, फीमेल लेना है, हैंडीकैप्ड लेना है, मेडिकल नीड का बच्चा लेना है। तो उस तरह की अडॉप्शंस की सैंक्शन आती है और उनको दिया जाता है। For your information, that child is growing in the Belgium now and she is come out from the mild mentally retardedness. She is now normal child. तो इस तरह का प्रक्रिया है, इस विशेष कानून में बनाया गया है। अडॉप्शन रेगुलेशंस भी आ गए 2017 में। तो ये केयर एंड प्रोटेक्शन की बात है। केयर एंड प्रोटेक्शन के तहत CWC को हमने पावर्स दी हैं इसमें, और उसके लिए हमने डिफरेंट चिल्ड्रन होम्स की एस्टेब्लिशमेंट की है। 0 से 6 साल तक का बच्चा या बच्ची जो है अडॉप्शन एजेंसी में रखते हैं। 6 से 18 साल के जो बच्चे हैं, मेल का चिल्ड्रन होम अलग होता है, फीमेल का चिल्ड्रन होम जो है अलग होता है। ऐसे चिल्ड्रन होम पूरे भारतवर्ष में NGO और गवर्नमेंट दोनों रन करते हैं। तो इस तरह के सेंटर हैं, आपके वहाँ पर भी सेंटर होगा पानीपत में। और इनमें 4 कॉर्नर डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाता है। CGM, DLSA, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, ये टाइम टू टाइम इन सेंटर्स को विजिट करती हैं। ये देखा जाता है कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जा रही है कि नहीं, उनकी क्लॉथिंग, उनका लाइवलीहुड, हर चीज का 4 कॉर्नर डेवलपमेंट का ध्यान उसमें रखा जाता है। हमारे यहाँ ये दोनों तीनों तरह के सेंटर हैं। सा भी है, चिल्ड्रन होम फॉर मेल चिल्ड्रन है, और एक ओल्ड एज होम है, जो तीनों हम एक टेम्पल परमिसेस में चला रहे हैं और कोई डोनेशन नहीं ली जाती इनके लिए। ये सारा जो हम कैथल में कर रहे हैं, वो जो टेम्पल में चंदा आता है उस चढ़ावे से हम इन तीनों को रन कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट से कोई एड नहीं ले रहे हैं। 4 कॉर्नर, और मेरे ख्याल से दैट इज द बेस्ट सेंटर ऑफ द हरियाणा। और कभी आप कोई विजिट भी करना चाहेगा तो वी विल शो यू विद परमिशन। ये केयर एंड प्रोटेक्शन की मैं बात कर रहा था। जब ये बच्चे चिल्ड्रन होम में 18 साल के हो जाते हैं, एक चीज और है कि जो बच्चा जितनी छोटी उम्र का है उनका अडॉप्शन रेट ज्यादा होता है, क्योंकि अडॉप्शन में कम उम्र का बच्चा जल्दी जाता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अडॉप्शन का उसका चांस कम हो जाएगा। जब ये बच्चे 6 से 18 साल वाले बच्चे 18 के हो जाते हैं तो इनको चिल्ड्रन होम में नहीं रखा जा सकता, तो इनको हम फिट फैसिलिटी में रखते हैं 18 से 21 साल तक। और अभी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक स्कीम बना दी इनके लिए, इनको हम फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं, और इनका प्रोस्पेक्टिव क्या होना चाहिए, इनको कैसे हम सक्षम करें सर्विस में जाने के लिए या काम करने के लिए, वो स्कीम भी बनने लगी है। उसमें इनको ग्रांट इन एड भी मिलेगी और 10 लाख तक का एक बच्चे को फाइनेंशियल फैसिलिटी भी मिलेगी, सो दैट कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ऐसा इन बच्चों के लिए इस विशेष कानून में किया गया है। तीसरी बात मैंने आपको अडॉप्शन की बताई। इसी कानून के साथ एक नया रेगुलेशन आ गया, अडॉप्शन रेगुलेशन 2017, जिसमें अडॉप्शन की पूरी प्रक्रिया, हाउ टू गेट ए चाइल्ड इन अडॉप्शन, हाउ टू गिव ए चाइल्ड इन अडॉप्शन, चाहे वो अबेंडेंड है, चाहे वो सरेंडर्ड है, चाहे वो इन रिलेशन चाइल्ड है जिसको अडॉप्ट करना है किसी ने,
वो कारा की पूरी प्रोसीडिंग है, उसमें चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी का गठन किया गया है और उसके द्वारा इन बच्चों को अडॉप्शन में दिया जाता है। एक चीज और है कि इसमें हम बच्चे का जहां फोर कॉर्नर ध्यान रखते हैं, अडॉप्शन में भी देते हैं। अडॉप्शन में देने के बाद भी वो बच्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही रहता है, सरकार का ही रहता है और उसकी 6 मंथली बेसिस पे रिपोर्ट कॉल की जाती है। जो जहां पर बच्चे को भेजा गया है वहां की एजेंसी उसकी रिपोर्ट, होम स्टडी रिपोर्ट भेजती है बच्चे की, और अगर उसमें कोई नेगेटिविटी हमें मिलती है तो हम उस बच्चे को वापस भी ले सकते हैं। ऐसा इसमें किया गया है ताकि कोई भी प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स जो हैं इन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार ना कर सकें या कोई जाति ना कर सकें। अडॉप्शन हो गया, केयर एंड प्रोटेक्शन हो गया, जुवेनाइल जस्टिस की बात हमने कर ली। अब बात करेंगे हम चाइल्ड राइट्स की और चाइल्ड लेबर लॉज की। देखिए, विशेष लॉज बनाए गए हैं जिसमें चाइल्ड अडोलसेंट लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन कानून 1986 में बनाया गया, जिसके तहत जो अडोलसेंट एज के बच्चे हैं उनको किसी तरह के लेबर वर्क में नहीं लगाया जा सकता, और जो उससे ज्यादा के 14 से 18 वाले जो बच्चे हैं उनको भी लाइट वर्क में ही काम पे लगाया जा सकता है, ऐसा इस कानून में दिया गया है। लेकिन इसमें एक रिलैक्सेशन ये है कि अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ काम कर रहा है, पेरेंट्स के और खुद के रहने के लिए काम कर रहा है, तो उसमें कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है। फर्दर जो बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में या एंटरटेनमेंट में इन चीज़ों में काम करते हैं तो उनको भी रेस्ट्रिक्शंस के साथ छूट दी गई है, लेकिन इन बच्चों से किसी तरह का हजार्डियस काम नहीं लिया जा सकता। इनको जो है कठिन कार्य इनसे नहीं लिया जा सकता, और 3 घंटे से ज़्यादा काम जो है एक साथ नहीं लिया जा सकता, और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे काम ले सकते हैं, लेकिन बीच में 1 घंटे का रेस्ट देना होगा। लेकिन जो एम्प्लॉयर है उनको इनका फोर कॉर्नर ध्यान रखना होगा, इनका खाना, इनका कपड़ा, इनकी एजुकेशन, इन चीज़ों की व्यवस्था भी उसको सुनिश्चित करनी होगी, ऐसा इस कानून में दिया गया है। चाइल्ड रिलेटेड लॉज में आप कोई भी किसी तरह का सवाल करना चाहें, यू आर ओपन, पूछ सकते हैं आप। एनी ऑफ यू, कोई आपकी क्वेरी हो, कोई चीज डिस्कस करना चाहें? चलिए, इतने आप सवाल सोचिए, मैं साथ में कुछ और भी जोड़ देता हूँ। हाँ, पूछिए प्लीज। सर नमस्कार। सर नमस्कार, शायद मेरी आवाज आ पा रही हो? शायद। हाँ, सर आ रही है, आ रही है, पूछ सकते हैं आप। सर, जैसे आप अभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में आप बता रहे थे और आपने इसमें 18 जो ईयर्स की एज तक के बच्चे की बात की जी। टाइम ऑफ दिस सेंस जो है, जिस समय बच्चे ने अपराध किया उस समय अगर बच्चा अपनी आयु 18 वर्ष से एक दिन ऊपर हो चुका है तो क्या वो इसमें काउंट होता है या नहीं? सर, जब बच्चे की एज ही 18 साल है, एक दिन ऊपर हो गया, वो मेजर हो गया, तो इस एक्ट का उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर, उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसकी एज प्रूव कर रहे हैं उसमें सेक्शन आ गया है। एक एज उसकी हम उसकी जो एज प्रूव कर रहे हैं, हम 10th की मार्कशीट के बिहाफ पे इन द सेंस कर रहे हैं, शायद जो भी उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट जो है जी। यहाँ 10th की मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट में दोनों में एज में डिफरेंस है जी। जहां तो पर इस सिचुएशन में क्या होता है? या जहां पर कंटेस्टेड केस में ऐसा होता है, ऐसा हमारे सामने आता है, बोर्ड में भी आता है, चिल्ड्रन कोर्ट में भी आता है, पॉक्सो की कोर्ट में भी आता है, स्पेशल कोर्ट में भी आता है, तो वहां पर कोर्ट डिटरमिन करती है कि इसकी एक्चुअल एज क्या है। उसमें प्रोसीजर दिया एक्ट में, नंबर 1 उसका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर वो नहीं है तो उसका जो है स्कूल या बोर्ड सर्टिफिकेट, अगर वो नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है मान लीजिए, तो उसका एक ओसिफिकेशन टेस्ट होता है हॉस्पिटल में, दांतों से, जबाड़े से, उसकी बोन से, उससे वो असेस करते हैं उसकी एज बच्चे की।
लेकिन उसमें टेंटेटिव एज देते हैं और उसमें 1 से 2 साल का गैप भी वो डॉक्टर दिखाता है। तो कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना होता है कि इसकी कितनी एज मानी जाए। इंटरव्यू करती है कोर्ट या बोर्ड और फिर उसकी असेसमेंट करती है उसकी एज की। ये एक प्रक्रिया है, ऐसा इसमें होता है। जी सर, थैंक यू। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। कोई और सवाल आपका किसी भी तरह का? चलिए, मैं इसके साथ थोड़ा सा और भी जोड़ देता हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। क्योंकि आज सभी बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, सोशल मीडिया को यूज करते हैं, नेट को यूज करते हैं, उसके भी बड़े इफेक्ट्स बोथ साइड में हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं आप सभी को सूचना भी दे रहा हूँ, अवेयर भी कर रहा हूँ इसके बारे में। नंबर 1 तो जो भी मैसेज आपके पास आता है, आप उसको बिना सोचे समझे नेक्स्ट पर्सन को फॉरवर्ड मत कीजिए। ऐसा इसलिए है, अगर वो मैसेज कोई गलत मैसेज है, फेक मैसेज है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में अगर हम ऐसा कोई मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो हम अपराधी की श्रेणी में आ जाते हैं और इस कानून के तहत 6 महीने तक की सजा हो सकती है। तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूं इसमें, सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी स्टाफ मेंबर्स को, कि जो भी आप मैसेज रीड करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट आपके पास किसी ने भेज दिया, जब तक आप उसको वेरीफाई ना कर लें, उसकी लीगलिटी को ना समझ लें, बिना मतलब के उसको दूसरे लोगों को फॉरवर्ड मत कीजिए। ये बहुत ही आवश्यक है। और जब कहीं कोई लपेटे में आ जाता है, फिर वो आकर अपनी इनोसेंस बताते हैं कि सर मेरे पास तो ये आ गया था, या कोर्ट में जज साहब को बोलते हैं कि मैंने तो ऐसे ही फॉरवर्ड कर दिया था। तो नहीं, आईटी एक्ट में कोई बचाव नहीं है उसका, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपराधी की श्रेणी में आते हैं। तो बेवजह से ऐसा कोई मैसेज आप आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। ये मैं आगाह करना चाहता था, ये बहुत जरूरी विषय है। मैंने अपने परिवार में भी अपने बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को इस बारे में सचेत किया हुआ है, और मैं खुद भी ऐसे मैसेज देख के उसको डिलीट कर देता हूँ, फॉरवर्ड नहीं करता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आप सबके लिए, और हम सभी का इसमें है कि हम लोगों को जागरूक करें कि ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, और इसमें दिक्कत आने की संभावना बनी रहती है। और जैसे कि आपको एडवाइस मिलती है, बार बार बैंक से भी मैसेज आते हैं कि हम कोई आपसे पिन नहीं मांगते, आपका पासवर्ड नहीं मांगते, तो बिना सोचे समझे किसी को भी ये चीजें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, उससे आपका नुकसान हो सकता है। अभी दूसरे विषय पे बात करेंगे, वुमेन रिलेटेड लॉज पे। मैं ये स्पेशल लॉज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्पेशल लॉज जो है हर एक अलग अलग चीज के लिए बनाया गया है। बच्चों के लिए बनाया गया, उसकी बात की हमने। ये सभी कानून इंडियन पिनल कोड में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, सिविल प्रोसीजर कोड में, एविडेंस एक्ट में ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहले से हैं। लेकिन फिर इन स्पेशल लॉज की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, ये स्पेशल लॉज बनाए गए स्पेशल पर्सन्स के लिए, जो वनरेबल सेक्शन है, बच्चे हमारे संवेदनशील हैं, महिलाएं संवेदनशील हैं, बुजुर्ग हमारे संवेदनशील हैं, इनके लिए हमने स्पेशल लॉज बनाए। तो उसमें एक स्पेशल लॉ है जिसकी हम बात करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। आप सभी ने सुन रखा, घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005 में ये कानून बन के आया हमारे सामने। और इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी? पहले भी तो दहेज के केस होते थे, 498A में आईपीसी लगा के उसका एफआईआर हो जाता था। मारपीट होती थी, 323 का केस बन जाता था, 25 का केस बन जाता था, 326 धारा लग जाती थी। फिर इस कानून की क्या जरूरत पड़ी? क्यों हमारी पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया? देखिए, इसमें कई तरह की बातें हैं। नंबर 1 तो महिलाओं के उत्पीड़न की बात हुई, और ऐसे बहुत सारे मामले हमारे देश में हमारे सामने आ रहे थे, उसके लिए जोर पड़ा। दूसरी बात, हमारी लॉ कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए, सिंगल विंडो सिस्टम, जैसे बैंक में होता है कि एक ही खिड़की पे गए
वहीं से पैसा ले लिया, वहीं पे पैसा जमा करा दिया, वहीं से कॉपी बनवा ली। ऐसा कोई कानून बनाया जाए कि एक ही अदालत में एक ही दरखास्त पे उस महिला को हर तरह के प्रोटेक्शन मिल जाएं, उसके अधिकार सुरक्षित हो जाएं, उसको सारी सेवाएं एक ही जगह मिल जाएं। इसलिए इस कानून को बनाया गया 2005 में। इस कानून के तहत एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट की गई हर एक जिले में, पूरे हिंदुस्तान में। संरक्षण अधिकारी, महिला संरक्षण अधिकारी, जो कि आमतौर पे वुमेन पुलिस स्टेशन में जिसको सीटिंग दी गई है। मैं आपको बता दूं कि ये महिला संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है, ये अपॉइंट तो की है वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट ने, लेकिन इसका ऑफिस बनाया गया पुलिस के साथ जोड़ के वुमेन पुलिस थाने में। जितनी भी ऐसी कंप्लेंट्स महिलाओं की आती हैं वो सारी ट्रांसमिट हो जाती हैं वुमेन पुलिस थाने में, और वुमेन पुलिस थाने से वो चली जाती हैं प्रोटेक्शन अधिकारी के पास। प्रोटेक्शन अधिकारी जो है, संरक्षण अधिकारी जो है, इसको इतनी पावर दी गई है कि इसको किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। बिना कोर्ट में जाए, बिना किसी मजिस्ट्रेट ऑर्डर के, ये पुलिस हेल्प लेकर अगर इसको सूचना मिलती है, ये उस महिला को संरक्षण प्रदान कर सकती है, उसके उत्पीड़न की रोकथाम कर सकती है। अब इसके स्पेशल फीचर क्या है इस कानून के? इस कानून में रेजिडेंस फैसिलिटी का एक मेन इशू था कि महिला जाए तो जाए कहाँ। जो मैट्रिमोनियल होम में महिला है, अगर उसको निकाल दिया गया है तो इस कानून में उस घर में भी उसके रहने की व्यवस्था सुरक्षित की गई है। उसको रेजिडेंशियल राइट मिल सकता है, प्रोटेक्शन मिल सकता है, एक कमरा उसके लिए उसमें सुनिश्चित किया जा सकता है। नंबर 2, सभी महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है इस स्पेशल एक्ट में, ये वो बंदी है या ये वो पर्सन है जो 4 कॉर्नर डेवलपमेंट की बात की गई है। उसको रहने की, खाने पीने की, उसके वस्त्रों की, कपड़े की, हर तरह की सुरक्षा प्रदान करने की ड्यूटी भी प्रोटेक्शन ऑफिसर की है। महिला कोर्ट के माध्यम से शिकायत भेज सकती है, महिला डायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास शिकायत कर सकती है, या कोई भी व्यक्ति उस महिला के बिहाफ पे शिकायत कर सकता है। और जो है कोर्ट नोटिस जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू ही दूसरी पार्टी पे जाता है, समरी ट्रायबल है। एट दी अर्लीस्ट इसमें कॉग्निजेंस कोर्ट को लेना होता है, उसके बच्चों का, उसका अपना, उसका रहने का, हर तरह का प्रोटेक्शन इसमें दिया जा सकता है। हालांकि ये कानून बनाया गया 2005 में, बहुत सी कंप्लेंट्स हैं, बहुत सी कंप्लेंट्स पेंडिंग भी हैं कोर्ट में, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है उतने अच्छे से नहीं हो पाया है। महिलाओं के लिए इंडियन पिनल कोड में भी विशेष लॉज हैं। 498 की बात मैंने की, 323 की बात की, 325 की बात की। तो महिलाएं विशेष कानून के तहत डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को भी अप्रोच कर सकती हैं। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, जैसे मैडम कोऑर्डिनेटर ने बताया, 1987 में ये बनाया गया और 1995 में इसको 9 नवंबर को लागू किया गया। लीगल सर्विस अथॉरिटी सेक्शन 12 के तहत महिलाओं को, बच्चों को, सीनियर सिटीजन्स को, पेरेंट्स को, शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड क्लास को, फ्रीडम फाइटर को, डिजास्टर विक्टिम को, इन सभी के फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन देती है और साथ में फ्री लीगल एड देती है। फ्री लीगल एड का बहुत बड़ा राइट है। आप सिंपल एप्लीकेशन दे दीजिए और वहाँ जो 50 वकीलों की टीम है उसमें से अपनी मर्जी का वकील आप ले सकते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी से, अपने कानूनी हक सुरक्षित करने के लिए, अपने कानूनी हक पाने के लिए। आपके खिलाफ केस डल गया हो तब भी, और आपने किसी कोई केस डालना है तब भी, इन दोनों सूरत में सेक्शन 12 के तहत जो भी इसमें टाइटल हैं वो लोग महिलाओं समेत एप्लीकेशन देके वकील की सेवा ले सकते हैं। तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे वो महिला इनकम टैक्स पेई हो, चाहे उस महिला की कितनी भी इनकम हो,
इसमें उसको फ्री लीगल एड मिलेगी, क्योंकि जेंडर के हिसाब से उसको एंटाइटल इसमें किया गया है। बहुत बड़ी फैसिलिटी है, जाकर देखिए। और वहाँ पर DLSA के ऑफिस में फ्रंट ऑफिस बनाया गया है, जहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर भी बैठाया गया है, एक पैनल एडवोकेट बैठाया गया है, एक पैरा लीगल वॉलंटियर बैठाया गया है। वो आपकी बात सुनते हैं, आपकी शिकायतें लेते हैं, आपको फ्री लीगल एड भी देते हैं, और इस सहायता से आप अपने कानूनी हक प्राप्त कर सकते हैं। ये महिलाओं के लिए विशेष योजना, और साथ में ही एक स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट की आई है, वो भी मैं बता दूं। 2-3 स्कीम्स हैं। जो बेसहारा महिला है या जो बेसहारा बच्चा है, डेस्टिट्यूट वुमेन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, दे आर एंटाइटल्ड टू फाइनेंशियल एड आल्सो। ये हरियाणा गवर्नमेंट की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीम है। मैं आपको इस वेबिनार के माध्यम से ये बता रहा हूं कि मान लीजिए किसी फैमिली का कर्ता मेल मेंबर जेल में चला जाता है, तो उसकी वाइफ और उसके फर्स्ट 2 चिल्ड्रन जो हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू फाइनेंशियल एड फ्रॉम द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। जितना टाइम वो अंदर रहेगा, इन तीनों को वो फाइनेंशियल एड पर मंथ मिलेगी। सिर्फ वहां से कस्टडी सर्टिफिकेट लगा के एप्लीकेशन फॉर्म भर के देनी होती है। अभी ऑनलाइन भी शुरू हो गया है। और कैथल हमने ऐसी जेल बना दी है जिसमें तकरीबन 700 के करीब प्रिजनर हैं। मैं आपको बता दूं, हमने जितने हरियाणा डोमिसाइल प्रिजनर्स हैं, उन सब की फैमिली की, वाइफ की और 2 बच्चों की फाइनेंशियल एड फैसिलिटी जारी कर दी है। ऐसा हमने सुनिश्चित कर दिया है, और ये आपके पानीपत में भी हो रहा है। आप DLSA की सेवा लीजिए, CGM साहब भी आपको एड्रेस करेंगे, वो भी बताएंगे। ये सब फैसिलिटीज के लिए DLSA एस्टेब्लिश किया गया है, हर एक जिला स्तर पे भी और सब डिवीजन लेवल पर भी। इनकी हेल्प ले सकते हैं आप, इन योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। जितने भी रेप केसेस हैं, जितने भी छेड़छाड़ के मामले हैं, जितने भी हीनियस क्राइम के मामले हैं, उसके लिए भी एक वेलफेयर स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट ने दी है, जिसमें 10 लाख रुपए तक का कंपनसेशन देने का प्रोविजन है। जितने भी बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, इन सबको हम ये कंपनसेशन राशि कोर्ट के द्वारा दिलवाते हैं। जिस कोर्ट में उनका मैटर चलता है वो रिकमेंड करते हैं, और ये पेमेंट जो है DLSA देता है हरियाणा गवर्नमेंट के फंड से। तो ये स्पेशल लॉज हैं और स्पेशल बेनिफिशियल स्कीम्स हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। आपको ये अवेयर कर रहे हैं आज इस वेबिनार के द्वारा कॉलेज के स्टूडेंट्स को, स्टाफ को। तो मैं चाहूंगा कि इस वेबिनार का फायदा तभी होगा अगर आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें। आपके नज़दीक जो इस तरह के लोग हैं उनको बताएं, वो लोग इन चीज़ों का बेनिफिट उठा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्कीम्स हैं, कई राज्यों में नहीं है, लेकिन हमारा स्टेट ऐसा है जिसमें इस तरह की वेलफेयर स्कीम्स लाई गई हैं, तो उनका बेनिफिट मिलना चाहिए। जब हरियाणा गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च कर दी, तो वो कोई खैरात नहीं है, वो उनके राइट है, लीगल राइट है, और अपना लीगल राइट बिल्कुल उनको मिलना चाहिए, लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और देखिए, ये भी अच्छी बात है, वेलफेयर स्टेट में हम रह रहे हैं कि सरकार ने अपने खिलाफ भी दावा डालने के लिए एक एजेंसी बना दी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो आपको फ्री में एडवोकेट दे रही है। बहुत से केस सरकार के खिलाफ भी डलते हैं जिसमें लीगल सर्विस एडवोकेट देती है। तो ये इसलिए किया गया है कि अगर किसी का कोई कानूनी राइट है, अगर वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है, अगर वो सक्षम नहीं है, तो ऐसे लोगों को फ्री लीगल एड दी जाए। विशेष कानून बनाया गया। तीसरी बात करेंगे अब हम प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। 2007 में वुमेन रिलेटेड लॉज में कोई आपका सवाल हो तो पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का। मैं तो ये सोच रहा था कि आपके कॉलेज में इतना रेप्यूटेड कॉलेज है और हाईवे पे है, बहुत सारी क्वेरीज आएंगी। मैं बड़ा तैयार होके बैठा था, सवाल नहीं आ रहे आपकी तरफ से। कोई क्वेरी स्टाफ मेंबर करे, बच्चे करें तो अच्छा लगेगा। हर घर में विवाद है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। तो अलग से भी बात करना चाहेंगे तो मैं नंबर शेयर करूंगा अपना, आप नोट कर सकते हैं 9416036400, 94-160-36-400। आप 5 बजे के बाद शाम को मेरे से बात कर सकते हैं। कोई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है उसको कॉन्फिडेंशियल हम रखते हैं,
और कोशिश करते हैं कि उसका समाधान हो सके। कोई फिर भी सवाल है आप इसके बाद में भी लास्ट आवर में भी पूछेंगे। अभी हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स की। ये हमारा एक तीसरा वर्ग है जो संवेदनशील है। पेरेंट्स को क्यों प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए विशेष लॉ क्यों होने चाहिए। हम देखते हैं हमारे सामने कोर्ट में जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ इस तरह की चीजें आती हैं। पेरेंट्स ने जो धन अर्जित किया, जो प्रॉपर्टी बनाई, किसको देते हैं पेरेंट्स? बच्चों को। लेकिन वो बच्चे वो सारी प्रॉपर्टीज लेने के बाद जब पेरेंट्स को साइडलाइन कर देते हैं तब जरूरत पड़ती है स्पेशल लॉज की। तो इसलिए विशेष कानून बनाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में बनाया गया। इसको 2009 में इसको लागू किया गया। इसमें विशेष प्रोविजन क्या है? देखिए बच्चों, आप सुन रहे हैं ना मुझे? यस सर। यस सर। मुझे लगा कि मैं ऐसे बोले जा रहा हूँ, कोई क्वेरी भी नहीं आ रही तो पूछ लूं जरा। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ आपके माध्यम से ये बात आपके परिवार तक जानी चाहिए, आपके मोहल्ले में, समाज में, कॉलोनी में जानी चाहिए। अगर कोई आप ऐसा पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन देखते हैं जिसकी प्रॉपर्टी उन्होंने अपने बच्चों के नाम कर दी, लेकिन उन बच्चों ने उनको मेंटेन करने से छोड़ दिया, साइड में कर दिया, घर से निकाल दिया, तब आपकी एक जिम्मेवारी भी बनती है उन ऐसे बच्चों के खिलाफ कार्रवाई। उन पेरेंट्स की, सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी वापस कैसे हो, इस कानून में वो प्रावधान दिया गया है। सिंपल एप्लीकेशन डीएम को जाएगी इसमें, और उसमें सिर्फ उन्होंने ये लिखना है कि ये प्रॉपर्टी मैंने अपने इस बच्चे को ट्रांसफर कर दी थी, लेकिन अब मेरे बच्चे मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मेरी दवाई दारू नहीं कर रहे हैं, मेरे को खाना नहीं दे रहे हैं, मेरे को घर में नहीं रख रहे हैं, मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दिलवाई जाए। 15 दिन के अंदर एसडीएम से, कंसर्न्ड एसडीएम से रिपोर्ट मांगी जाएगी। एसडीएम पुलिस को साथ लेकर कार्रवाई कर सकता है, रिपोर्ट भेज सकता है। उस रिपोर्ट पर वो प्रॉपर्टी, वो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी वापस उन पेरेंट्स के नाम चली जाएगी। ये पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई है इस कानून में। दूसरी बात, मेंटेनेंस की, इनकी पेरेंट्स की भी मेंटेनेंस और सीनियर सिटीजन। अभी मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी की बात की थी, ये पावर है डीएम के पास। मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन जाएगी आपकी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास। जरूरी नहीं है कि ये एप्लीकेशन वो पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन डालें। कोई भी व्यक्ति जिसके पास ऐसी जानकारी है कि उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा उन पेरेंट्स को या सीनियर सिटीजन को, कोई भी व्यक्ति एप्लीकेशन डाल सकता है। उसका कॉग्निजेंस लेना होगा, समरी ट्रायल है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट मंगवाकर ऑर्डर पास करना होगा, उनको फाइंड करना होगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा, उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, वो सारे काम कर सकता है। कितना बढ़िया कानून है। देखिए, जिन माँ बाप ने, जिन पेरेंट्स ने, जिन सीनियर सिटीजन ने अपने बच्चों को पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उनकी प्रॉपर्टी भी ले ली और उनको बाहर निकाल के फेंक दिया। बहुत से केसेस हैं ऐसे। अगर आप गूगल पर देखेंगे तो हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, हमारे सीनियर जुडिशियल ऑफिसर्स, उन तक को निकाल के फेंक दिया, और उसमें केस लॉ आया उसके बाद। तो सभी इसका संज्ञान लेते हैं और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि ऐसे लोग सफर ना करें। हमारी अदरवाइज भी बीइंग सोसाइटी मेंबर ये दायित्व बनता है कि इन लोगों को हम प्रोटेक्ट करें और इनके राइट्स को हम दिलवाएं, इनके राइट्स को हम प्रोटेक्ट करें। विशेष लॉ है। अब मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि किसी भी तरह का इन विषयों पर भी, इससे हटके भी अगर आप कोई सवाल करना चाहें पूछ सकते हैं। हेलो सर, आपका कैमरा ऑफ हो गया। ओके, जी ओके सर। कोई सवाल आपका किसी भी तरह का इस विषय पे भी, इससे हटके भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सवाल तो आना चाहिए ना।
गुड आफ्टरनून सर। यस मैम। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपने अगेंस्ट पेरेंट्स ये जो बताया कि अगर बच्चे इस तरह से पेरेंट्स के अगेंस्ट करते हैं तो क्या जी। ऐसा लॉ भी है जैसे कि रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज कोई ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ हो फैमिली में तो उसके अगेंस्ट किसी तरह का पिटीशन किया जा सकता है? या मैडम देखिए, लॉ इज वेरी ओपन, बहुत जी। सारी बातें हो सकती हैं। उन बच्चों के भी लीगल राइट्स हैं, वो अपने ढंग से चलेंगे, लेकिन ये स्पेशल लॉ इन सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इस लॉ की ये मंशा नहीं है कि जिनके बच्चों के खिलाफ है ये सिटीजन और पेरेंट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। अगर उनका कोई लीगल राइट है तो वो अप्रोप्रिएट रेमेडी कोर्ट ऑफ लॉ में ले सकते हैं। जी जी जी, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। देखिए सवाल निकल के आता है, अच्छा सवाल था आपका, बहुत अच्छा सवाल था। पहले भी जो सवाल पूछा गया था दैट वाज ए गुड क्वेश्चन। तो इससे क्वेरी से माइंड क्लियर होता है। पूछिए, आप स्टाफ मेंबर्स में से भी पूछिए, बच्चे शायद पूछने में झेप कर रहे हैं। Excuse me, sir. Good afternoon, sir. यस। My name is Dipti, sir. मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट के लिए अलग से एक्ट है सर, क्या नेगेटिव कमेंट के लिए भी कोई एक्ट है सर? तो जैसे एक एक्ट है 509 टीचिंग से रिलेटेड सर, गर्ल्स को अगर नेगेटिव कमेंटिंग करते हैं तो सर उसके लिए कोई ऐसे स्पेशल एक्ट? देखिए वो इसी में कवर हो जाएगा। सेक्सुअल हरेसमेंट की बात की आपने, अच्छा सवाल किया है। इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इस वेबिनार के द्वारा, अगर मैडम परमिट करती हैं, टाइम की समय सीमा नहीं है तो। सेक्सुअल उसमें तो हरेसमेंट, सर फिजिकल, हाँ, सेक्सुअल सर मैं कह रही हरेसमेंट में थी कमेंट के रेप लिए। केसेस में ऐसी कमेटीज बनाई गई हैं। आपके कॉलेज में भी ऐसी कमेटी होगी, बिल्कुल पोर्टल पे भी डाला गया होगा। मैं इस वेबिनार के द्वारा आपको थोड़ा सा वर्किंग बताना चाहूँगा, क्योंकि जिन लोगों को इसमें मेंबर चेयरपर्सन बनाया जाता है वो बना तो दिए हैं, कमेटीज भी बना दी हैं, पोर्टल पे भी डाल दी हैं। उन लोगों को भी अपनी पावर और ड्यूटीज का नहीं पता है, और ना ही विक्टिम को पता है। जिसके साथ जाती हुई है उसको भी नहीं पता कि मुझे कंप्लेंट कैसे देनी है, किसके पास देनी है, उसका संज्ञान कौन लेगा, कैसे काम करना है ना ये बात? मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ जी जी सर। आपके कॉलेज में भी ऐसी कंप्लेंट कमेटी बनी होगी, पक्की बात है, पोर्टल पे भी होगी जरूर, जो उनके मेंबर हैं। नंबर एक तो अगर 3 मेंबर हैं तो 2/3 मेजोरिटी जो है फीमेल होनी चाहिए। 3 में से 2 मेंबर फीमेल होंगे, ऐसा इसमें कानून में प्रावधान किया गया है। और प्रेफरेबली जो चेयरपर्सन है वो सीनियर ऑफिसर होंगी और वो भी फीमेल होंगी, ऐसा इसमें डाला गया है कानून में। नंबर एक बात, ऐसा इसलिए किया गया है कि सेक्सुअल हरेसमेंट किसके साथ होनी है? वुमेन के साथ होनी है। तो जो वुमेन को चेयरपर्सन बनाया गया, 2/3 मेजोरिटी रखी गई, वो इसीलिए कि वुमेन के राइट्स और उसकी कंप्लेंट को सही ढंग से सुना जाए, सुरक्षित किए जाए। और इसकी समय सीमा है, उस समय सीमा के अंदर उसका संज्ञान लेना है। इन्होंने इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी करेंगे। अब उसके बेनिफिट भी हैं इसमें, सेक्सुअल हरेसमेंट लॉ में क्या बेनिफिट हैं, उसको कुछ पीरियड के लिए जितना वो ठीक समझें रिकमेंड कर सकते हैं कि इसको विद पे लीव, नंबर एक। नंबर दो, अगर मैटर ज़्यादा टाइट है, उसका संज्ञान लेते हुए जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई है उसको काम पे आने से रोका जा सकता है, या उसको दूसरे वर्क प्लेस पे ट्रांसफर किया जा सकता है। जो इस महिला को आप विदाउट वर्क रखेंगे वो उसका ऑन ड्यूटी पीरियड काउंट होगा, इस तरह का इसमें प्रोविजन किया गया है। इसकी टोटल रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल होगी। इस कमेटी को पावर है, पूरे मजिस्ट्रेट वाली पावर दी गई है। वो विटनेस बुला सकते हैं, गवाहियां लिख सकते हैं, कोई रिकॉर्ड समन कर सकते हैं, तो ऐसी भी पावर इसमें दी गई है। और इसकी जो रिकमेंडेशन होगी उस रिकमेंडेशन पे
प्रिंसिपल जो है या जो भी मैनेजर होगा, जो भी इंचार्ज होगा, उसको फिर अगर वो रिकमेंडेशन करते हैं एफआईआर के लिए, एफआईआर भी करवाई जा सकती है। ऐसे प्रोविजन इसमें दिए गए हैं। मैं इसको साथ में एक्सप्लेन थोड़ा सा इसलिए कर दिया कि कमेटीज तो बन गई हैं हर जगह, लेकिन उनको अपनी पावर एंड फंक्शनिंग और ड्यूटीज का नहीं पता है। इसमें दो तरह की कमेटीज हैं। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो कि उसी इंस्टीट्यूट में होगी, लोकल कंप्लेंट कमेटी, मान लो किसी इंस्टीट्यूट में ऐसी कमेटी की फॉर्मेशन नहीं की गई है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सब डिवीजन लेवल पर लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाई गई है, जिसमें डीसी या एसडीएम इंचार्ज होते हैं, और वहां पर फिर ऐसी रिपोर्ट की जा सकती है, ऐसा ग्रीवेंस वहां पर कंप्लेंट के द्वारा भेजा जा सकता है, वो फिर इसमें कार्रवाई करेंगे। जी, इस बारे में कोई और बात पूछनी हो आपको किसी भी तरह की? देखिए, ये भी स्पेशल लॉ है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स है स्पेशली, और इसमें इतने प्रोविजन है, 3 या 4 पेज का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें उनके लिए बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, स्कीम्स दी गई हैं। उस देखिए, उसको छुट्टी मिल सकती है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, दूसरा व्यक्ति उसकी सीट तक ना आए ऐसा उसमें रोकथाम कर सकते हैं, दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये इसमें स्पेशल फीचर हैं इस कानून के, सेक्सुअल हरेसमेंट के। जी, कोई बात और, या इसको मैं कंक्लूड कर दूं अभी? सर एक प्रश्न और है। हाँ जी। सर, जैसे हम जिस समाज में रह रहे हैं, यहाँ थोड़ा अभी ग्रामीण स्तर पर लिटरेसी का अभाव है जी, और उस सिचुएशन में बहुत सारे पेरेंट्स ये नहीं जानते कि उनके पास जो संपत्ति उनके पास है उन पे उनके क्या राइट्स हैं। जी, जैसे हम अनसेस्टर प्रॉपर्टी के बारे में सुनते हैं जी, कि माता पिता की यदि वो संपत्ति है तो वो अपने तरीके से अपने बेटे को ना देकर बल्कि अगली तीसरी पीढ़ी तक वो उसे पहुंचा सकते हैं। जी। तो सर, थोड़ा सा इसके बारे में अगर विस्तार से बताएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। संक्षिप्त में बताएं, समय शायद कम हो, लेकिन नहीं, इस पर थोड़ा एक बार इस पे भी प्रकाश डालें सर। देखिए, ये दायित्व लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत लीगल सर्विसेज को दिया गया है फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग मासेस। और लीगल सर्विस अथॉरिटीज, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटी है, ये अपने स्तर पर स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्लम्स में, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज में जा जाकर लीगल अवेयरनेस करते हैं, डिफरेंट कानून की जानकारियां देते हैं। जैसे मैं आज आपको दे रहा हूं, तो ये डीएलएस से और आपके कॉलेज का एक जॉइंट वेंचर हो गया, जिसके द्वारा आपको ये जानकारी दी जा रही है, अवेयर किया जा रहा है। तो इस तरह के हम कैंप्स लगाते हैं बहुत, उसके द्वारा ये अवेयरनेस की जाती है। और फिर इनके ग्रीवेंस रेड्रेसल फ्रंट ऑफिसेज बनाए गए हैं, कोर्ट में भी बनाया गया है, लीगल सर्विस में भी बनाया गया है कि आप आइए, अपने हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, डोर स्टेप पे लीगल सर्विस प्रोवाइड की गई है। तो ये इनिशिएटिव एक विशेष कानून के तहत सरकार के द्वारा लिया गया और डिपार्टमेंट बनाया गया लीगल सर्विसेज का। उसके तहत एक जुडिशियल ऑफिसर इसमें सीजीएम लेवल के, जैसे अमित शर्मा जी हैं आपके पानीपत में, इनको लगाया गया। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। सब डिवीजन में जो सीनियर मोस्ट जज है उसको सेक्रेटरी बनाया गया, नोडल ऑफिसर बनाया गया। तो इस तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम। अभी देखिए, जब मैं प्रैक्टिस में आया, मैं बात करूं 89 की, तो जो आज स्पेशल लॉज हैं उस समय वो स्पेशल लॉज थे ही नहीं। तो हमारा सिलेबस भी लॉ में बड़ा लिमिटेड था। आईपीसी पढ़ ली, सीआरपीसी पढ़ ली, सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ लिया, एविडेंस एक्ट पढ़ लिया, तो हो गया लॉ। अभी 5500 से ज्यादा लॉज हैं। अभी इतना प्रोडक्ट आ गया, जैसे पंसारी की दुकान में होता है ना, घी है, चीनी है, नमक है, दालें हैं, वगैरह वगैरह। तो अभी देखिए कितनी तरह की कोर्ट्स आ गई हमारे पास। पहले सिविल जज ही होता था या क्रिमिनल कोर्ट होती थी, अभी स्पेशल कोर्ट है, चिल्ड्रन कोर्ट है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, 138 की स्पेशल डिसऑनर ऑफ चेक्स की कोर्ट है, क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए बड़ी कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, जुवेनाइल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, लेबर लॉज की अलग से कोर्ट आ गई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की अलग से कोर्ट आ गई, यूटिलिटी सर्विसेज की परमानेंट लोक अदालत आ गई,
मीडिएशन का कंसेप्ट आ गया, आर्बिट्रेशन का कंसेप्ट आ गया, कंसिलेशन का सब्जेक्ट आ गया, तो हमारी दुकान अब बहुत बड़ी बन गई। इसमें इतने प्रोडक्ट आ गए, दुकान से अदरवाइज मतलब लेने की नहीं है। ये इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया गया, ये आम लोगों को, जरूरतमंद लोगों को, पुअर पीपल को फैसिलिटेट करने के लिए किया गया। अभी मैं बता दूं, अभी कॉमर्शियल कोर्ट्स आ गई हैं। अभी जो 3 लाख से ऊपर की वैल्यू के दावे होंगे या जिसमें कॉमर्शियल मैटर्स हैं, वो सारे कॉमर्शियल कोर्ट में डेल्ट होंगे, उनका समरी प्रोसीजर अलग से आ गया। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हम बाहर से भी कानून लेके आते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आए, यूके से लेकर आए। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहाँ से लेकर आए? सबसे पहले अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई, तो यूनाइटेड नेशंस में ट्रीटी हुई, वहां से इसको लेकर आ गए। वुमेन का स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आए हम, जब हमारे यहाँ हीनियस क्राइम बढ़ गए, महिलाओं से लेकर जो अपराध था बहुत बढ़ गया था। किसी समय स्टोव फटा करता था, अखबार में न्यूज आती थी, स्टोव फट गया, गैस सिलेंडर फट गया, महिला मर गई। भाई आदमी क्यों नहीं मरा? महिलाओं का कहीं ना कहीं शोषण हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, तो उनके लिए स्पेशल लॉज लाने की जरूरत पड़ी। कोई कानून आपने सुना है कि मेल पर्सन के लिए कानून है? नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? क्या ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? मैडम कोऑर्डिनेटर स्माइल दे रही हैं। देखिए, मैं इस बात को इसलिए छेड़ रहा थोड़ा सा, हमारी आर्यन सभ्यता है, हमारी भारत की संस्कृति है। आर्यन सभ्यता क्या थी? आदमी काम करता था, महिला बच्चों को संभालती थी, उनका पालन पोषण करती थी, खाना बनाती थी। कहीं लिखा है किताब में कि महिला ने ही रोटी बनानी है? बताइए। या महिला ने ही कपड़े धोने हैं? किसी किताब में ये लिखा हो भी आदमी ने रोटी नहीं बनानी, कपड़े नहीं धोने, बर्तन नहीं मांजने? बता दो कहीं लिखा हो तो। जेंडर सेंसिटाइजिंग किया गया है सर। ये सब हमारा कस्टमरी है। एक सभ्यता के हिसाब से हमारी पीढ़ी चल रही है, हमारी संस्कृति चल रही है, ऐसी बाइंडिंग कहीं नहीं है। मैं वेबिनार के माध्यम से तो बता ही रहा हूँ, मैं जहाँ फिजिकल भी जाता हूँ, कॉलेजेस में, स्कूल में, मैं वहाँ ये बात छेड़ता हूँ जरूर। भाई किसने कह दिया कि खाना नहीं बनाना आदमी ने? रोटी बनानी सिर्फ महिलाएं ने ही सीखनी है? अब दोनों हस्बैंड वाइफ एमएनसी में काम कर रहे हैं, वो तो दोनों बराबर की सैलरी ले रहे हैं। वो कहेगी आज खाना आपने बनाना है, तो बनाना पड़ेगा, बनाना चाहिए भी, क्यों नहीं भाई? गाड़ी के पहिए हैं, इकट्ठे चलना है। मेरी बात सही है या गलत है? बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सहमत है सर। तो ये समझने की बात है, जो ये बात समझ जाएगा उसके घर में डिस्प्यूट होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो आंख दिखाएगा तो फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट भी आएगी, सारी चीजें होंगी। अभी मीडिएशन सेंटर बनाया गया डीएलएसए के तहत, हर एक डिस्ट्रिक्ट में है मीडिएशन सेंटर, हर एक सब डिवीजन में। मीडिएशन सेंटर में एडवोकेट ट्रेंड मीडिएटर होता है, जिसको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। 40 घंटे का एक स्पेशल कोर्स उसको करवाया जाता है। ट्रेनर आते हैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से आते हैं। स्किल ट्रेनिंग, साइंटिफिक मेथड है हमारे पास। उसमें मैक्सिमम केसेस फैमिली डिस्प्यूट्स के आते हैं, और कुछ में मामला ज़्यादा गर्म होता है, कुछ में छोटी छोटी सी बातें होती हैं। जो ट्रेंड मीडिएटर होता है वो पहले अपनी इंट्रोडक्शन देता है, दोनों को बिठाता है, उसके बाद अलग अलग डेट पे या सेम डेट में भी कर सकते हैं, सिंगल सेशन करते हैं, क्लोज डोर मीटिंग। हमारा साउंड प्रूफ रूम होता है, हर एक मेडिएशन सेंटर में अब 3-3 ऐसे रूम बना दिए, साउंड प्रूफ है बिल्कुल। उसको बंद कर लेते हैं, सिंगल पार्टी अंदर बैठती है। हम पहले उसकी बात को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो पेपर में डिस्प्यूट आता है ना, वो एक्चुअल में डिस्प्यूट नहीं होता है, बात कुछ और होती है। तो जब हम उनका कॉन्फिडेंशियल ट्रेंड मीडिएटर गेन कर लेता है, तो पार्टी फटाफट अपने अंदर की बात बताती है कि कागज में तो वकील ने ये लिख दिया, असली बात ये है। जब ट्रेंड मीडिएटर दोनों तीनों पार्टीज की बात सुन लेता है और ये समझ लेता है कि अब टाइम आ गया इनको इकट्ठे बिठाने का, फिर जॉइंट सेशन ऑफ मीटिंग करते हैं मीडिएशन की, फॉर एमिकेबल सेटलमेंट, ताकि ये परिवार टूटे ना, इनकी सेटलमेंट एमिकेबली हो। और अगर पार्ट भी होना है, अगर इन्होंने सेपरेट भी होना है, तो इनका ना तो टाइम खराब हो कोर्ट में, थाने में, और ना इनका पैसा खराब हो, तो इनकी सेटलमेंट आपस में ही हो जाए।
तो जॉइंट सेशन करते हैं, बहुत टाइम लगाना पड़ता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी देना पड़ता है उसमें, लेकिन हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। हम एमिकेबल सेटलमेंट उनकी अपनी शर्तों पे करवाते हैं, उनके अपने समझौते के तहत करवाते हैं, अपनी कोई बात हम उनके ऊपर थोपते नहीं है। मैं पिछले 10 साल से ट्रेन मीडिएटर हूँ और मेरे को इस बात को बताते हुए खुशी होती है कि जिन परिवारों को मैं जोड़ पाया हूँ वो आज तक वो परिवार भी मेरे से जुड़ गए हैं, उनका घर बस गया, क्योंकि डिस्प्यूट होना हस्बैंड वाइफ में हो गया है। सफर कौन करेगा? बच्चा। अगर उनको हम पार्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं, बच्चा एक के पास जाएगा, या माँ के पास या बाप के पास। दोनों का प्यार नहीं मिला, उसको लव एंड अफेक्शन नहीं मिला, वो बच्चे की 4 कॉर्नर डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। उसके ऊपर कितना मर्जी पैसा खर्च लो, उसको आप जो भी लेके जा रहा है उसको जितनी मर्जी फैसिलिटी दे दो, जब तक उसको माँ और बाप की दोनों का शेल्टर नहीं मिला, शेडो नहीं मिली, अम्ब्रेला नहीं मिला, उसका प्रोटेक्शन हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं सफर करेगा। तो वो एक बड़ा हमारे ऊपर बोझ होता है कि किसी तरह ये परिवार ना टूटे और ये बच्चे ना सफर करें। काउंसलिंग करते हैं, उनकी मीडिएशन में पूरा हमारे पास 60 से 90 दिन का टाइम होता है, और उस टाइम के अंदर हमें उनकी सेटलमेंट करा के कोर्ट में रिपोर्ट भेजनी होती है, जो समझौता हम करवाते हैं। फिर उस समझौते के मुताबिक ही कोर्ट में बयान होने होते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर वो फिर से मुकर जाएं या समझौते से पार्ट हो जाएं तो वो मीडिएशन फेल हो जाती है, फिर उनका केस चलता है। तो ऐसा भी कंसेप्ट इसलिए लेकर आए हम मीडिएशन का कि ये परिवार जुड़े रहें। शादी ब्याह कोई ऐसी चीज नहीं है अभी शादी कर ली और देखिए, एक बड़ी समझने की बात यह है, 20 साल के बाद 25 साल के बाद जो लड़की अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जा रही है, उसके लिए एक लॉटरी है। वो उसको नहीं पता कि वो कहाँ जा रही, उसका क्या होने वाला है। बिल्कुल एक ब्लाइंड गेम है मैरिज। हो सकता है उसको परिवार इतना अच्छा मिल जाए कि वो अपने मायके से भी ज्यादा खुश हो जाए, और हो सकता है उसी दिन से उसका दूसरा जीवन शुरू हो जाए डिस्प्यूट वाला। तो उसके लिए तो एक लॉटरी है, लेकिन ये मैरिज है, मैरिज ऑफ कॉमन इंटेंशन की, अपने व्यूज की। हमें ये समझ के लड़की देनी भी चाहिए और लड़की लेनी भी चाहिए कि वो एक इंसान है जिसको हम अपने घर में लेके आ रहे हैं या अपने बच्चे को दूसरे घर में भेज रहे हैं। हर चीज अच्छी तरह सोच समझ के करनी चाहिए। फैमिली डिस्प्यूट क्यों आ रहे हैं हमारे पास, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट क्यों आ रहे हैं? मैं कैथल की बात करूं तो 1200 कंप्लेंट पेंडिंग है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन की, डीबी एक्ट की। 2-2, 3-3 बच्चे पैदा करके छोड़ रखी हैं, कहाँ जाएंगी? 2-4 साल केस चला तो वो सेटलमेंट कभी होनी नहीं, उनकी लाइफ खत्म, वो बच्चे भी आवारा हो जाएंगे, उनका 4 कॉर्नर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो ये सीरियस इशू है। इस समय कोर्ट्स में मैक्सिमम केसेस 2 ही तरह के हैं, या फैमिली डिस्प्यूट है या चेक डिसऑनर के केसेस हैं, बाकी मैटर नहीं है आज के दिन। तो इसलिए इनके लिए स्पेशल लॉज वुमेन के लिए लेकर आए हैं, मीडिएशन सेंटर बनाया, आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, ताकि इनको इकट्ठे रखा जा सके, इनको काउंसलिंग करें। अब अनपढ़ लोग हैं, उनको काउंसलिंग के द्वारा कुछ मान भी जाते हैं, और पढ़े लिखे जो हैं वो जहां अटक गए तो अटक गए। मेरे पास एमएनसी के 2 बच्चों का केस आया, हस्बैंड वाइफ, करोड़पति फैमिलीज। नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंशियलिटी हमें रखनी होती है। मैं उनसे पूछा कि रीजन क्या है? कोई रीजन नहीं, 3 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, बस अब ख्याल नहीं मिलते हैं, रीजन कोई भी नहीं है। खेल बना दिया है मैरिज को, पेरेंट्स क्या करेंगे? इस तरह के भी इश्यूज हैं, हर तरह की समस्या है। हमें कानून के दायरे में लोगों को शिक्षित भी करना है, अवेयर भी करना है, उनकी काउंसलिंग भी करनी है, और फैमिली को टूटने से बचाना भी है। ये हमारा दायित्व भी है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको अपनी जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहिए। मेल को ये नहीं समझना चाहिए कि ये सारा काम इसने करना है। अरे भाई तुम, वो देखिए, अभी कुछ जजमेंट्स ऐसी आई हैं सुप्रीम कोर्ट की कंपनसेशन के केसेस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी होल्ड किया कि जो कट लगता था पर्सनल एक्सपेंसेस पे, मान लीजिए कि 10 लाख का अवार्ड मिलना है, तो जिसकी डेथ हुई है उसका 1/3 काट के वो अवार्ड मिलता था, लेकिन
फीमेल के डेथ में उन्होंने कहा नो कट हैज टू बी अप्लाइड, बिकॉज ये तो 3 गुना काम करती है, 24 घंटे काम करती है, इसमें कट नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि महिला जो है अपने घर में राउंड दी क्लॉक है, वो तो उस पे हम किसी तरह का कट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन आई और बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है ये। तो इन बातों को ध्यान में रख के हमें महिला का सम्मान भी करना चाहिए, मान भी करना चाहिए, कोऑपरेट भी करना चाहिए, और हमें एक दूसरे की समस्या को, दिक्कत को समझना भी चाहिए, तभी हम सोसाइटी को अच्छे से रन कर सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। तो आज के वेबिनार में मेरी तरफ से इतना ही। कोई फिर भी आपका सवाल है तो आई एम रेडी। क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन। हाँ जी, सर जैसे डिवोर्स हो जाता है, आवाज कम आ रही है आपकी। तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, क्या पता कब तक ये करें हम। सर जैसे डिवोर्स हो जाता है, आप मेरी मोबाइल आवाज को ना थोड़ा सा अपने मुंह के पास लाइए ताकि आवाज क्लियर आए आपकी। सर जैसे डिवोर्स हो जाता है तो बच्ची की कस्टडी मिल जाती है किसी ना किसी एक को, फिर उसके स्टेप फादर या स्टेप मदर आते हैं, उसको हाँ जी। मेंटली डिस्टर्ब होता है, बच्चा बड़ा होता है, तो बाद में वो अपने अकॉर्डिंग वो किसी फादर मदर को चुन सकता है, या उस पे जो मदर मेंटली जो डिस्टर्ब होता है वो बच्चा उनके द्वारा, तो उसके लिए क्या होता है? बच्चा तो ग्रो कर जाता है पर वो मेंटली देखिए, डिस्टर्ब होता है बहुत ये भी अपने अच्छा सवाल है। जहां पर डाइवोर्स होने के बाद स्टेप फादर या स्टेप मदर आते हैं, सेकेंड मैरिज होती है और वो बच्चा उस फैमिली में जाता है। अडॉप्शन रेगुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। नंबर 1 तो पेरेंट्स को ये नहीं पता, जो स्टेप फादर या स्टेप मदर हैं उनको वो बच्चा लीगली अडॉप्ट भी करना होता है। मान लीजिए बच्चा मदर लेके आई है, तो जो स्टेप फादर है ही हैज टू अप्लाई अंडर अडॉप्शन रेगुलेशन अंडर द कारा इन द कोर्ट प्रोसीडिंग टू गेट दैट चाइल्ड इन अडॉप्शन, तब वो लीगली उसका फादर बनेगा। इसी तरह अगर फादर के पास बच्चा है और स्टेप मदर आ रही है, तो स्टेप मदर को अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ लॉ में फॉर द अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड। अब उस अडॉप्शन का फायदा क्या है? उसके सारे पेपर्स में स्टेप फादर या स्टेप मदर के नाम आ जाएंगे, उसके प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उस फादर मदर का शेयर भी उसको मिलना है बाद में। अगर हम ये ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके राइट्स कर्टेल हो जाते हैं, और वो डिफरेंस भी रहता है कि ये तो मेरा स्टेप चाइल्ड है। तो ये एक जरूरी बात है। अच्छा सवाल था, आपके माध्यम से मैं बता दूं कि अगर कोई ऐसा है उसको आप इन्फॉर्म कीजिए कि एडॉप्शन रेगुलेशन के तहत वो पहले उसको लीगली अडॉप्ट करे। मैरिज तो होगी, मैरिज रजिस्टर कराएंगे, उसके बाद उसको कारा पे रजिस्टर करेंगे और कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेंगे, लीगल अडॉप्शन होगा। और जो बच्चे के राइट हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं, उसमें कोई कर्टेल नहीं कर सकता है। जब बच्चा 18 साल के बाद हो जाए तो वो मेजर है, फिर उसका मर्जी है कि उनके पास रहे या नहीं रहे, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। एम आई क्लियर? और सर अगर वो मेंटली डिस्टर्ब होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ करती है कि वो मेंटली किसी डिस्टर्ब कैसे कह रहे साइकोलॉजिस्ट हैं? से? जब पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, तो दे हैव टू मेंटेन। गवर्नमेंट ने तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बना दी केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए। अगर वहां कोई एप्लीकेशन आती है तो वो बच्चे को देखते हैं, अगर बच्चे को कस्टडी में लेने की जरूरत होती है कस्टडी में लेते हैं, चिल्ड्रन होम में भेजते हैं, वहां 4 कॉर्नर डेवलपमेंट करते हैं। ये नहीं है कि पेरेंट्स हैं, बच्चा उनके पास है तो गवर्नमेंट उसको कोई फाइनेंस देगी, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. It was a very informative lecture. Pankaj, sir. हाँ जी मैम। हाँ जी, we have reached end of the session, sir. Participants, if you have any query, you can ask. Mr. Samar has raised his hand. Please ask your query.
Have you any question, Mr. Sanal? No. Please keep switching on your cameras for a group photograph. Please switching on your cameras. Start करें? हाँ जी, ज़्यादा नहीं? Okay. yeah, you may wind up. Pankaj. Okay. I would like to express our sincere thanks. सर एक बार सीजीएम साहब आ रहे थे तो सीजीएम साहब से भी एड्रेस करवा लेते Okay. हैं। Okay. Grateful to you, Khurania Sahab, अच्छा, for the nice lecture. I hope our aim of spreading the knowledge and awareness can be accomplished by these webinars. And we are grateful to Arya College, all their staff, Principal Sahib, and Madam Minal for organizing this. These kind of webinars are very necessary to spread the awareness from amongst the students as well as staff persons so that we can achieve the gender equality as well as the justice for the weaker and poor section as well as for the women. As you know, Mr. Arvind Khurania has explained beautifully all the laws applicable, specially made for the women. So their knowledge would, I hope, that would bring them all the equality in the society. Thank you. Thank you for your words of wisdom. I would like to convey my sincere thanks to the resource person of this National Legal Awareness Webinar, Shri Arvind Khurania ji, who shared his valuable knowledge with the attendees and with us. Thanks for enlightening us, sir. Thank you very much. I would also express my gratitude towards the special guest of this webinar, Shri Amit Sharma ji, CGM cum Secretary, DLSA Panipat. Thank you, sir, for sharing the views with the participants. Thank you very much, sir. I extend my thanks to worthy principal of the college, Dr. Jagdish Gupta ji in absentia, and IQC coordinator, Shri Satveer Singh ji, who guides us and inspires us to arrange such program in the college for the benefit of teaching fraternity and as well as for the students. I also convey my heartily thanks to convener and coordinator of Legal Literacy Cell and coordinator Women Development Center, Mrs. Meenas Tarlasji, for organizing such webinar for the benefit of all of us. I would like to convey, it is my unbounded duty to convey my thanks to the participants who joined us in this webinar. Without their participation, the success cannot be imagined. And I also express my thanks to technical support who always provide me technical support, Mr. Vikas Katpal. Thank you everyone who joined us directly or indirectly in this webinar. Thank you everyone. Please switch on your cameras for a group photograph. Thank you, sir. Thank you, Amit Sharma ji. Thank you, Arvind Khurania ji. Thank you. Thank you for joining us. ग्रुप फोटोग्राफ के लिए प्लीज अपने कैमरास ऑन करने के बाद सभी स्टूडेंट्स, सभी फैकल्टी मेंबर्स हु जॉइंड अस एंड आल्सो आवर resource person and a special guest of this webinar. Switch on your cameras. Okay, sir.